Today, day 7 of the monsoon session of Parliament will resume. Now, the opposition alliance India will meet once again to reinforce their protest against the government on Manipur issue. This comes a day after the Home Ministry decided to hand over the probe in the viral video to the CBI. Now, the opposition is not placated and wants the Prime Minister to be present in Rajya Sabha for a discussion on the events in Manipur. Meanwhile, a delegation of the alliance is slated to visit Manipur for 2 days, starting today. Now, the delegation hopes to give inputs for the no-confidence motion that was moved by the Congress and the BRS a day before. But yesterday, there seemed to be a divide within the alliance over the solo rush by the grand old party. Partners like the DMK, TMC and the CPIM and a few other parties were upset over the matter. Let's take a look at some of the reactions. जो भी आपस में यहाँ देश में विवाद हो, कम से कम देश के बाहर, तो हमें एक जुड़ के हमें पूरे भारत को एक किस्म से यूनाइटेड इमेज, यूनाइटेड पोजीशन दिखानी चाहिए। और जो आज जो व्यवहार जो विपक्ष का था संसद में, राज्यसभा में, ये मैं कहूँगा पूरे देश में इस पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो जहां देश की हित हो, जहां देश की प्रगति हो, जहां देश की उन्नति हो, जो हमें कहीं राजनीति को साइड में रखकर इसकी तो हमें कम से कम अप्रिसिएशन, इसकी प्रशंसा हमें करनी चाहिए। When a motion of confidence is admitted into the House, no substantive business can take place until that motion of confidence is disposed of. So the government cannot be passing bills while this no confidence motion is pending. So it is incumbent that they bring the no confidence motion to vote very quickly. But before that, we are asking the Prime Minister to come and make a statement about Manipur, and they are being very obtuse about it. The Prime Minister waxes eloquent about a mythical third term and in his speech yesterday, but does not want to come to the House to talk about a pressing issue which is happening currently in Manipur. So this is very unfortunate. But let me make it very, very clear. When a no confidence motion is pending, Parliament cannot, the government cannot transact any substantive business. मुझे लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया है और प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मणिपुर के बारे में हमें जरूर चिंता है। वहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो शांति करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहाँ कुछ म्यांमार से वगैरह कुछ आतंकवादी एक्टिविटीज वाले लोग वहाँ घुस रहे हैं और इसलिए मुझे वहाँ जो हिंसा बढ़ती जा रही है, लेकिन वहाँ शांति होनी चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने अपने मेंबर को बोलकर चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए मणिपुर पर। क्या सुझाव है, सुझाव उन्होंने देने के लिए हाउस चलना चाहिए, लेकिन हाउस नहीं चल पा रहा है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर मणिपुर के विषय पर अपना बयान दे दिया है और अमित शाह जी जब चर्चा होगी तो उसका रिप्लाई अमित शाह देने के लिए तैयारी है और इसीलिए मुझे लगता है कि इतना हंगामा करना ठीक नहीं है। Terrible what happened in Manipur for the women, but it's also terrible things are happening to others. 55,000 people have been displaced from their homes. We're looking at 149 people whose lives have been lost. This is not a small matter. You can certainly talk about other states if you want to, but the other states have not had any of these situations. I do believe in many ways that the opposition loses out when there is disruption, because we are the ones who want to question the ministers. We are the ones who have to raise constituency issues. We are losing our 0 hour. We are losing our all sorts of opportunities to put the government on the spot. But I think the decision was taken by the leaders of all these parties to go for disruption because they felt it was the only way of getting the government to focus on the most burning issue in the country. And the sad truth is the government is still not focused on the burning issue. So we are looking at a situation where the opposition is losing out, the government is losing out, the whole country is losing out. देखिए, राहुल गांधी जी और बच्चे में कोई फर्क नहीं है, वो एक बच्चे हैं
जैसे सांसद में जब से उनकी सदस्यता गई है, संसद नहीं आ रहे हैं, तो लोकसभा पूरा सुना सुना लगता है। जैसे हमारे आपके बच्चे होते हैं, घर आप जाते हैं तो बच्चों के कारण जो है वो हंसी खुशी किलकारी जो है गूंजती रहती है, क्योंकि बच्चे को बुद्धि तो होती नहीं है, वो आपसे इसी तरह की उलझुल की बातें करता है। तो राहुल गांधी और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। राहुल गांधी के बिना संसद जो है जिस तरह से सूना लगता है, वैसे भी यदि ट्वीट नहीं करें तो लोगों को जो है मजाक का एक साधन नहीं मिले। तो देश भर में जब भी उनका ट्वीट आता है तो लोग उसके बड़े चाव से इसीलिए देखते हैं कि वो मजाक के पात्र बनते हैं। मणिपुर की जो पूरी स्थितियां हैं वो 1956-57 में आपसा लगाया था आपने, उसके कारण मणिपुर की स्थिति ऐसी बढ़ी है। और जो जवाब देना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर सारी बातों पर चर्चा होगी। भाई वो अगर नारा लगाएंगे तो हम चुप कैसे रहेंगे? वो अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में नारा लगाएंगे तो सत्ता पक्ष भी चुप नहीं रह सकता है। और आज काला कपड़ा पहनकर आने की आवश्यकता क्या थी? जब लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव मंजूर हो गया, यहाँ भी जब हम डिबेट के लिए तैयार हैं, कल भी 0 आवर में स्पेशल मेंशन में कई विपक्ष के लोगों ने मणिपुर के मुद्दे को उठाया, तो जब सरकार तैयार है तो फिर यहाँ हंगामा करने का और सदन को नहीं चलने देने का क्या औचित्य था? आज तक एक भी 0 आवर नहीं हो पाया इस सदन के अंदर, क्वेश्चन आवर भी अभी तक ठीक से नहीं चल पाया। तो आप अगर सदन को बाधित करेंगे तो हम लोग का भी तो धैर्य की एक सीमा है, इसीलिए उनका जवाब देना बहुत आवश्यक था। इसलिए सत्ता पक्ष की ओर से भी नारेबाजी हो रही थी कि काला मन काला धन नहीं सहेगा हिंदुस्तान में। संसद का सत्र जब चलता है, 75 वर्ष की ऐसी परंपराएं हैं कि नीति संबंधी वक्तव्य प्रधानमंत्री सदन के पटल पे देते हैं। ये पहला अवसर है जब भार दिया गया। विरोध के तरीके हैं, जब आवाज ना सुनी जाए तो ब्लैक डे मनाते हैं, ब्लैक फ्लैग करते हैं। ये पुरानी परंपरा का हिस्सा। अगर किसी ने हमने गुनाह किया है तो डालो ना जेल में, कौन रोकता है आपको? देश के अंदर किसी कोने में कोई हादसा होता था, देश के प्रधानमंत्री तुरंत बोलते थे, न्याय की बात करते थे और वहां पहुंच जाते थे। आज प्रधानमंत्री जी दुनिया घूम रहे हैं और उसी दुनिया मणिपुर की चिंता करके थू-थू कर रही है और प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जा सकते हैं। एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो आग का रूप रहे, उससे पहले उसको ठीक करना चाहिए। जब मणिपुर की समस्या शुरू हुई तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में पहुंच गए थे, चुनावी राजनीति कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और आज भी जब हालत बने हैं इसके लिए जिम्मेवार कोई है तो प्रधानमंत्री है। देखिए, हमारे सीनियर लीडर जा रहे हैं उसमें, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जा रहे हैं, जावेद अली खान साहब जा रहे हैं। अब वो ज़मीनी हकीकत देखेंगे कि है क्या, कितने मकान बर्बाद हो गए, कितनी आग लग गई, कितने लोग मर गए, कितनों के साथ रेप हो गए, कितनों की असमत गरी हो गई, ये सब निकाल के लाएंगे।